So today we'll be continuing with the Punjab Courts Act, section 26 onwards. So if you haven't watched the previous part, so please go and watch it, and you'll be able to cover section 1 to 25 from that video. And let's continue. Section 26. Section 26 talks about pecuniary limits of jurisdiction of civil judges, senior division. सो उसकी पेकनरी जुरिस्डिक्शन की बात बता रहा है एंड सिविल जजेस जूनियर डिवीज़न कि क्या क्या उनकी पेकनरी मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी विच इज़ इन रिगार्ड टू मनी. So jurisdiction to be exercised in original suits, civil suits as regard to value by any person appointed to be for Haryana civil judges senior division and for junior division to be determined by the High Court either by including him in a class or otherwise as it thinks fit. So जो भी ये डिवीज़न होगी that will be done by the High Court. जैसे टाइम टू टाइम वो डिसाइड करेंगे that will be the apt manner. And for Haryana also the jurisdiction to be exercised in the original civil suits as regard to the value by a person appointed to be a civil judge senior division cadre at intermediary level. So we know that जो हरियाणा की डिवीज़न है ना उसमें इंटरमीडिएरी लेवल्स भी आते हैं, सीनियर, अपर, सुपीरियर, सीनियर जज. तो ये भी इनकी जो जुरिस्डिक्शन होगी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दैट विल अगेन बी डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन 27 लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन. Local limits of jurisdiction of a civil judge senior division and civil judge junior division shall be such as High Court may define. Again, कौन डिफाइन करेगा? हाई कोर्ट. देन मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 2 when High Court posts a civil judge senior division and the junior division to a district, local limits of the district shall, in absence of any direction to the contrary, shall be deemed to be the local limits of his jurisdiction. तो जो जब भी हमारी अपॉइंटमेंट होगी तो उस अकॉर्डिंग जब अपॉइंटमेंट होगी तो जहाँ हमारी अपॉइंटमेंट होगी तो वहाँ की लोकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमारी जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा. ठीक है. फॉर हरियाणा लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अगेन जैसे हाई कोर्ट डिफाइन करेगा वैसे ही होगी. देन अगेन जैसे जो सीनियर डिवीज़न कैडर इंटरमीडिएट लेवल या जूनियर डिवीज़न लेवल है तो जो उसकी लोकल लिमिट्स की जुरिस्डिक्शन होगी जहाँ उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी वही उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो जाएगा. So we have to remember the next number also, special judges and the benches. Number is 28. The state government may, after consultation with the High Court, appoint any person to be the honorary civil judge senior division and the civil judge junior division, and the High Court may confer on such judge all or any of the powers conferable under this act on a civil judge senior division and the junior division with respect to particular class of suits, with respect to the suits or with respect to suits generally in any local area. The state government अगेन हमें इसमें भी अथॉरिटी ध्यान में रखनी है कि कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है. सो द अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट may direct any uneven number of persons invested with the powers of the same description and exercisable within the same local area under the section to sit together as a bench whose power shall, while direction remains in, for be exercised by the bench so constituted and not otherwise. The decision of the majority of the members of the bench constituted under this section shall be deemed to be the decision of the bench. So जो majority decide करेगी that will be the decision. Persons on whom the power are conferred under this section and the benches constituted under this section shall be deemed for the purpose of this section to be the part of civil judge senior division and for the junior division again. ठीक है. Then again for Haryana let's find out if कोई change है तो. I think the section is same for Haryana as well. बस इसमें इनका अगेन जो ये डिविजन्स इंटरमीडिएरी लेवल्स पर डिविजन्स हैं इसको मेंशन करते हैं इन केस ऑफ हरियाणा. देन नेक्स्ट वन इज सेक्शन 29 power to invest civil judge senior division and civil judge junior division with small causes courts jurisdiction. तो कौन कर सकता है इनको, कौन दे सकता है पावर? इट इज़ हाई कोर्ट may by notification in the official gazette
तो दे सकते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट की पार टू सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न जज। ठीक है, देन इसमें ये हमें ध्यान में रखना है दैट अ वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। ठीक है, दिस वैल्यू का MCQ इज़ बीइंग आस्क्ड टाइम एंड अगेन कि कितनी वैल्यू हो सकती है स्मॉल कॉजेज कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, सेकेंडरी जुरिस्डिक्शन की, दैट इज़ 2000 रुपीज़। And for Haryana, let's figure out. I think it's same again, 2000 rupees only. Then next is 30th, exercise by civil judge senior division, civil judge junior division of jurisdiction of a district court in certain proceedings. तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पार को एक्सरसाइज कब कर सकते हैं? जब हाई कोर्ट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड अ सिविल जज जूनियर डिवीजन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज to transfer a civil judge senior division and a civil judge junior division under his control. The proceedings referred to in subsection 1 are the following. कौन सी proceedings हो सकती हैं जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर जा रही है, प्रोबेट में जा रही है, जैसे बिल्स वगैरह, और जिसमें हम डिसाइड करते हैं. The district judge may withdraw any such proceeding taken in cognizance of by or transfer to a civil judge senior division and a civil judge junior division may either himself dispose of them or transfer them to the court under his control competent to dispose of them. Proceeding taken cognizance of by transfer to civil judge senior division and junior division as the case may be under this section shall be disposed of by him subject to the rules applicable to like proceedings when disposed of by district judge. तो वैसे ही इसको ट्रीट किया जाएगा जैसे डिस्ट्रिक्ट जज ने इसको डिसाइड किया था. अगेन फॉर हरियाणा कौन डिसाइड करता है? बाय हाई कोर्ट अगेन. बस हमने ना इन प्रोविजंस में ये माइंड में रखना है कि हु अपॉइंट्स. सो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर सीरीज़ लेट्स मेक अ चार्ट जिसमें हम अथॉरिटीज़ डिसाइड कर लेंगे कि हाई कोर्ट कहाँ है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, और स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट कहाँ है. सो इनको हम सारे सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. That will help us to remember the sections more properly and only this is asked in the MCQs also कि कौन सी अथॉरिटी है, कौन एम्पावर कर सकता है, who divides what. So okay, let's do this exercise by the end of this video or in the next video. Then for the section 31 प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट. प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट कौन डिसाइड करता है? अगेन हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट एज टू बी हेल्ड. प्लेस और द प्लेसेस ऑफ फिक्स मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. कहीं बाहर भी हो सकता है जुरिस्डिक्शन से. एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन. कोर्ट अंडर दिस पार्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन. या अंदर हो सकती है जुरिस्डिक्शन के या फिर बाहर हो सकती है. देन 32 सेक्शन वॉज ओमिटेड बाय दिस अडॉप्शन ऑफ इंडियन लॉज ऑर्डर 1937. नेक्स्ट इज 33 कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ अ हाई कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव द कंट्रोल ऑफ ऑल सिविल कोर्ट्स अंडर दिस पार्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन. तो सुपरिटेंडेंस, जनरल सुपरिटेंडेंस किसकी होगी? हाई कोर्ट की. और बट जो कंट्रोल होगा ओवरऑल वो किसका होएगा? डिस्ट्रिक्ट जज का. सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. देन 34 पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स सब भूल जाओ. ठीक है, I am not sure if I wrote the spelling correctly, but okay, the notwithstanding means सब भूल जाओ. जो भी CPC में लिखा है that every district judge may by a written order direct that any civil business cognizable by his court and the courts under this control shall be distributed among such court in the manner as it thinks fit. तो डिस्ट्रिक्ट जज जो भी कोर्ट्स का बिजनेस है, जितने भी केसेस आते हैं उसको डिवाइड करेगा. ठीक है, जिससे उसको सही लगेगा. प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज एनी पावर और डील विद बिजनेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. बट वो कभी भी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं इशू करेंगे जो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है. ठीक है. देन 35 वॉज ओमिटेड अगेन
36 Part 2 Fine Ministerial Office. A district court or a court under the control of a district court may fine in an amount not exceeding 1 month's salary. You have to mark this and remember the amount also. कितनी है 1 month की salary जो भी होएगी. कोई भी any ministerial officer of the court of misconduct of neglect in the performance of his duty. So as a punishment 1 month की salary दे दी जाएगी. District court may on appeal and otherwise reverse or modify any order made under subsection 1 by any court under its control by way of its motion fine up to 1 month salary any ministerial officer of any court under its control. तो district court को लगता है then they can modify or reverse also that very particular order. Then delegation of district judge power. District court may with the previous sanction of high court. किसका सैंक्शन चाहिए पहले? प्रीवियस हाई कोर्ट का. डेलीगेट टू एनी सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स लोकल गवर्नमेंट. बस इसमें कुछ इतना है नहीं. डेलीगेशन किसकी सैंक्शन किसका चाहिए? हाई कोर्ट का. ठीक है. देन नेक्स्ट इज चैप्टर 4 एपीलेट एंड डिविजनल जुरिसडिक्शन इन द सिविल केसेस. वील डू दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. इसमें जो टाइम पीरियड है अपील्स का, किसकी अपील किसको जाएगी, दैट मैटर्स. सो लेट्स बिगिन. 38 अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जजेस save as otherwise provided by an enactment for the time being in force and appeal from a decree or order of a district judge or ADJ shall lie to high court. So DJ हो या ADJ हो उसकी अपील किसको जाएगी? हाई कोर्ट को. ठीक है. An appeal shall not lie to the high court from a decree or order of an additional district judge in any case in which if the decree or order has been made by a district judge an appeal would not lie to that court. देन अपील फ्रॉम सिविल जज सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न की कहाँ जाएगी? टू डिस्ट्रिक्ट जज. बस वो हिरार्की फॉलो करनी है. और इसकी अमाउंट कितनी नहीं होनी चाहिए? 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. डिड नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़. और अगर 5 लाख से प्लस है तो यहाँ जाएगी हाई कोर्ट में. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एक्सेप्ट हिज इनहेरेंट ऑल अपील पेंडिंग्स इन हाई कोर्ट. The value of which did not exceed 20,000 rupees can transfer to the district judge. ये तो कुछ इतना है नहीं. बस वी शुड नो कि किसकी अपील किसको जाएगी. और जो हरियाणा के लिए प्रोविज़न है इट विल कि सीनियर जज और जूनियर जज की डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू. उसमें था ना 5 लाख तक का हाई कोर्ट तक का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 5 लाख प्लस हो तो हाई कोर्ट. तो फॉर पंजाब बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन हरियाणा. यहाँ कोई भी वैल्यू हो हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी. देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल हियर ओनली सच अपील्स एज हाई कोर्ट में. अगर हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है ADJ को तभी वो अपील सुन सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ all appeals from decree and order of civil judge senior division and intermediary level and junior division cadre and irrespective of the regional shall go to the district judge. High court may by notification direct that appeals lying to the district judge from all or any of the decrees of order passed in the original suit civil judge senior division at intermediary level. ये again सारी अथॉरिटीज़ मेंशन करते हैं. इसका मेन पॉइंट क्या है? shall be deemed to be the district court for the purpose of all appeals to preferred. Part 2 transfer civil judge senior division and senior judge appeals from other. तो ये पार किसके पास है? और डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफ़र अपील और पेंडिंग बिफोर जज विड्रॉ any appeal to transfer and either appeal transferred under this section shall be disposed of. Power conferred by this section shall be exercised subject to general special orders from time to time in issued by a court. Second appeals किसको जाएगी? And appeal shall lie to high court from every decree passed in appeal subordinate to any of. या क्यों कर सकते हैं सेकेंड अपील? या तो कॉन्ट्ररी टू लॉ था
कस्टमर यूजर्स के साथ नहीं था, फेल टू डिटरमाइन सम मटीरियल इशू ऑफ सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट आ गया, अपील में लाया और एक्स पार्टी अगर चली गई है तो भी हम सेकेंड अपील डाल सकते हैं, और कोई और ग्राउंड पे सेकेंड अपील नहीं जाएगा एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड्स गिवन अंडर 41। और जहाँ अमाउंट ऑफ वैल्यू 5,500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है उस केस में नो सेकेंड अपील, ठीक है। देन रिवीजन हम कब करते हैं, जब जुरिस्डिक्शन प्रॉपर नहीं होती, फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, मटीरियल रेगुलरिटी है तो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। और इसका 40 पीरियड कितना है, 90 डेज़। ध्यान रखना हमेशा 60 और 90 में कन्फ्यूजन होती है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो 90 डेज़ इज़ द ट्रिक, ठीक है। रिवीजन के लिए 90 डेज़ है। इन कंप्राइजिंग सिमिलर इज़ द थिंग फॉर लिमिटेशन एक्ट ऑल्सो, हमें 90 डेज़ चाहिए होते हैं रिवीजन करने के लिए। इन कंप्यूटिंग दिस पीरियड विद ऑल रेस्पेक्ट्स नॉट हेयर इन स्पेसिफाइड, तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। बाकी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस पार्ट, पावर्स में भी कन्फर बाय हाई कोर्ट टाइम टू टाइम कोई भी पावर्स कन्फर कर सकती हैं। और जितनी भी पिटिशन राइटर्स का ये नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 46A प्रोविजन रिगार्डिंग पिटिशनर राइटर्स कौन बनाता है, हाई कोर्ट। और ठीक है, इसमें क्या करना होता है, डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज अ पिटिशनर राइटर, कौन कौन एक्ट कर सकता है। रेगुलेटिंग द इशू ऑफ लाइसेंसेज टू सच पर्सन कंडक्ट बिजनेस बाय देम, डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेस ऑफ सच रूल्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड पेनल्टीज में भी इन्वॉल्व। और हॉलीडेज़ कौन डिसाइड कर सकता है, हॉलीडेज़ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। द हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ टू ऑब्जर्व। देन provisions regarding pending proceedings, all suits, appeal, revision, application, review, execution and other proceedings whatsoever, civil or criminal, जो भी pending है in Chief Court of Punjab shall be continued and concluded in the High Court of Judicature at Lahore. This is not relevant अब। So yeah, that's all I suppose, और कुछ इसमें बचा नहीं है। Schedule है that you can overlook, and yeah, by this I declare the end of this act. So if you have any doubts, any comments, any queries, feel free and drop a comment below. And for more, please stay tuned and let me know in the comments which subject would you like to study next, and I shall try to bring that video only. Thank you so much.